آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ نیوٹریشن ان بیکٹیریا ہے کہ بیکٹیریا جو ہے نیوٹریشن کیسے کرتے ہیں اور آن دا بیس آف نیوٹریشن یہ کتنی طرح کے ہو سکتے ہیں. تو بیسیکلی بیکٹیریا آف ٹو ڈفرنٹ ٹائپس آن دا بیس آف نیوٹریشن. نمبر 1 آر کالڈ ہیٹروٹرافک بیکٹیریا. ہیٹرو مین کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنٹ، جو ڈفرنٹ سورسز سے اپنی فوڈ کو حاصل کریں، یعنی کہ جو خود اپنی فوڈ کو تیار نہ کر سکے اور ڈفرینٹ سورسز سے اپنی فوڈ کو حاصل کرتا ہے، وہ ہیٹروٹرافک ہے. تو بیکٹیریا یہ بھی ہیٹروٹرافک ہو سکتے ہیں. سو دے کین ناٹ سنتھسائز دیئر اون فوڈ. موسٹ آف بیکٹیریا آر ہیٹروٹرافک. اکثر بیکٹیریا کون ہے؟ ہیٹروٹرافک ہے. فردر ہیٹروٹرافک بیکٹیریا آر آف ٹو مین ٹائپس. اس میں نمبر 1 ہے سیپروفیٹک بیکٹیریا. سیپروفیٹک get their food from the dead organic matter. ایسے بیکٹیریا جو اپنی فوڈ کو ڈیڈ آرگینک میٹر سے حاصل کرتے ہیں، مردہ چیزوں کو کھا کر اپنا گزارا چلاتے ہیں، یا مردہ چیزوں کو توڑتے پھوڑتے ہیں، گلاتے سڑاتے ہیں، اور ان سے جو اپنی فوڈ حاصل کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ سیپروفیٹک ہے. جب بھی کسی باڈی کی ڈیتھ ہوگی تو سب سے پہلے وہاں پر 2 چیزیں پہنچتی ہیں، یاد کرنا. 1122 سے پہلے، لوائکین سے پہلے بیکٹیریا اور فنجائی پہنچتے ہیں. یہ دعوت اڑانے کے لیے تیار ہے ہر وقت. تو اس ڈیڈ باڈی کو جا کر یہ ڈیکمپوز کرتے ہیں، اور جب اس کی ڈیکمپوزیشن ہوتی تو اس سے جو پارسلی ڈیکیڈ آرگینک میٹر بنتا ہے، جزوی طور پر، نامکمل طور پر گلا سڑا جو پہلا مواد بنتا ہے، اس سے ہم ہیومس کہتے ہیں. ہیومس یعنی کہ وہ بلیک ہوتا ہے، امارفس پاؤڈرز ہے، بے ترتیب پاؤڈر ہے، وہ ہیومس ہے. جیسے اگر کسی جگہ پر کوئی اینیمل مرا پڑا ہو، وہ ڈنکی ہے، کیٹ ہے، وغیرہ وغیرہ، تو آپ دیکھتے ہیں کچھ دنوں کے بعد صرف اس کا ڈھانچہ پڑا ہوتا ہے، یا پھر زمین کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ایسے بلیک پاؤڈر سا پڑا ہوتا ہے. وہ بلیک پاؤڈر جو ہے وہ ہیومس ہے، اور اس میں آل ایسینشل کیمیکلز ہوتے ہیں: سوڈیم، پوٹاشیم، کاربونیٹ، بائی کاربونیٹس، اور اس کے علاوہ اس میں امائنو ایسڈ ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں، پروٹین ہے. جب وہ مٹی میں شامل ہوتے ہیں، اس سے زمین کی زرخیزی میں اضافہ ہوتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس ذات نے جو گند ہے، غلاظت ہے، مردہ چیزیں، ان کا انتظام کر دیا ہے بیکٹیریا اور فنجائی کے ذریعے. اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی تو پھر مردہ چیزوں کے یہاں غلاظت کے انبار لگے ہوتے، بدبو پھیلتی، جینا دوبر ہوتا، اور بیماریاں پھیلتی. تو بیکٹیریا جا کے اسے ڈیکمپوز کر کے اسے مٹی میں شامل کر دیتے ہیں، اس سے ہیومس میں تبدیل کر کے زمین کی زرخیزی کے باعث بنتے ہیں. نمبر 2 ہے پیراسیٹک بیکٹیریا. پیراسائٹ کون سا ہوتے ہیں؟ جو اپنے ہوسٹ میں سے فوڈ کو حاصل کرتا ہے، یعنی کہ ہوسٹ اور پیراسائٹ کا ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے. تو پیراسائٹ خود بھی لیونگ ہے، اور دوسرے لیونگ یعنی کہ اپنے ہوسٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نیوٹریشن کے لیے. تو ابھی ہم نے ذکر کیا جو ہیٹروٹرافک ہے، جو اپنی فوڈ کو خود تیار نہیں کر سکتے، مزید 2 طرح کے ہو گئے: سیپروفیٹک اور پیراسیٹک. سیپروفیٹک ڈیڈ آرگینک میٹر سے، اور پیراسیٹک لیونگ سے اپنی فوڈ کو حاصل کرتے ہیں. نیکسٹ، دوسری طرح کے جو بیکٹیریا ہیں وہ آٹوٹرافک کہلاتے ہیں. آٹو مین کیا ہوتا ہے؟ اٹ سیلف. جو اپنی فوڈ کو خود تیار کر سکتے ہیں، جو اپنی فوڈ کو خود تیار کر سکتے ہیں، وہ کون ہے؟ آٹوٹرافک ہے. سو دے کین سنتھسائز necessary organic compounds from inorganic substances. Inorganic substances سے اپنی آرگینک فوڈ کو یہ تیار کرتے ہیں. فردر یہ 2 ٹائپس کے ہیں: فوٹو سنتھیٹک اور کیمو سنتھیٹک. یعنی کہ بیکٹیریا بھی فوٹو سنتھیٹک ہوتے ہیں، بیکٹیریا کے اندر بھی فوٹوسینتھیسس ہوتی ہے، ان میں بھی کلوروفل ہے، لیکن ان کا جو کلوروفل ہوگا بٹ ناٹ ان سائڈ دا کلوروپلاسٹ، وہ کلوروپلاسٹ کے اندر ان کا کلوروفل نہیں ہوتا.
यानी कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इनका क्लोरोफिल वैसे ही साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरा होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान दे यूटिलाइज द हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। प्लांट्स वाटर का इस्तेमाल करते हैं और इसलिए वो जाकर आगे सल्फर की बजाय ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कौन? ग्रीन प्लांट्स। अब जो बैक्टीरिया है दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज व्हाई दे रिलीज द सल्फर। ये सल्फर को रिलीज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और बैक्टीरिया सल्फर को रिलीज करते हैं। क्यों? ये वाटर की बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। फिर उस तरह यहाँ पर लाइट भी होनी है, साथ यहाँ पर क्लोरोफिल भी होगा। अब जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं उनके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर और पर्पल नॉन सल्फर, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो जो ऑटोट्रॉफिक हैं, जो अपनी फूड को खुद तैयार कर सकते हैं, हमने कहा है बच्चों वो दो तरह के हैं, फोटोसिंथेटिक और अब आ रहा है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से हैं? दे ऑक्सीडाइज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, nitrates, nitrites, sulfur are the ferrocyanins. They oxidize the inorganic compounds जैसा कि अमोनिया है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, सल्फर, फेरासाइन, इनको ऑक्सीडाइज करके इनमें से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं और फिर अपनी एक्टिविटीज के लिए उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। कीमोसिंथेटिक जैसे उसके नाम से जाहिर है, डिफरेंट जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, अमोनिया, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, सल्फर, फेरासाइन वगैरह, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं और फिर जाकर उसमें से एनर्जी को ये रिलीज करते हैं और वो एनर्जी फिर अपने डिफरेंट फंक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया आर द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया खत्म हो गई है, देन उसके बाद रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रेस्पिरेशन भी करते हैं लेकिन हमारी तरह नहीं करते, हमारे तो बकायदा लंग्स है। अब क्योंकि ये यूनिसेलुलर है तो उनके अंदर ऐसा सिस्टम तो हमारी तरह है नहीं, लेकिन वो रेस्पिरेशन करते हैं। तो ऑन द बेस ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया आर द 4 डिफरेंट टाइप्स: एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव और माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया। These are the 4 major types of bacteria on the base of respiration. Aerobic, अब लफ्ज है एरो, ये एरो लफ्ज खड़ा हुआ है, जैसे होता है एरोप्लेन, एरो मीन होता है एयर, एरोप्लेन का मतलब होगा कि हवा के ऊपर तैरने वाले प्लेन सरफेस है, फट्टा नुमा चीज है। अब एरोमीन यहां पर एयर है यानी कि ऑक्सीजन है। दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन, इनको ऑक्सीजन चाहिए। एग्जांपल हमारे पास सुडोमोनास, सुडोमोनास आर द एरोबिक बैक्टीरिया। देन इज द एनएरोबिक। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर बायो में किसी लफ्ज से इकट्ठा पहले एन आ रहा हो या ए आ रहा हो, उसका मतलब होता है विदाउट, बगैर। अब क्योंकि ये लफ्ज खुद ए से स्टार्ट हो रहा है, ये वोवल है, ए से पहले ए तो नहीं आ सकता, ए से पहले एन आना है, तो बन गया एनएरोबिक। लिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो ऑक्सीजन के बगैर जिंदा रह सकता है, वो कौन है? सपैरोशीटा, सपैरोशीटा। फैकल्टेटिव, लिव इन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, चाहे ऑक्सीजन हो या ना हो दोनों हालतों में जिंदा रह सकते हैं। एग्जांपल ई कोलाई, ये बड़े खतरनाक है क्योंकि जैसा माहौल होगा या हर माहौल में सरवाइव कर सकते हैं, मरते नहीं है। कौन है? फैकल्टेटिव। एग्जांपल क्या है? ई कोलाई, एस्कर्शिया कोलाई। देन लास्ट है माइक्रो एरोफिलिक।
माइक्रोमीन क्या होता है? समाल, लो, एरोमीन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए लेकिन लो अमाउंट में चाहिए, रिक्वायर वेरी लो अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम हो, लो हो, तो उस माहौल में जिंदा रह सकते हैं। एग्जाम्पल कैम्फेलोबैक्टर है। कैम्फेलोबैक्टर, पहले तरतीब से इनके नाम याद करो, एरोबिक, एनारोबिक, फैकल्टेटिव और माइक्रोएरोफिलिक। उनके एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल सुडोमोनास, स्पायरोशीटा, इकोलाई और कैम्फेलोबैक्टर आ रहा है। ये रेस्पिरेशन बैक्टीरिया खत्म हो चुकी है। देन उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ग्रोथ। यानी कि बैक्टीरिया के अगर सेल्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है वो ग्रोथ है। जैसे हमारे यहाँ होती है, बच्चा छोटा से बढ़ता जा रहा है, उस कद में इजाफा होता जा रहा है। बंदा तो वही है, बच्चा तो वही है, सिर्फ उसमें सेल की तादाद बढ़ती जा रही है और उसका बॉडी आगे बढ़ता जा रहा है। इट इज डन बाय द बेनिफिशियन, यानी कि अगर बैक्टीरिया ने अपने सेल की तादाद में इजाफा करना हो तो वो बेनिफिशियन के जरिए करता है। बेनिफिशियन क्या है? बाई मीन क्या होता है? टू, फिशन मीन ब्रेक डाउन, लेकिन चेन रिएक्शन है। पहले 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4, फिर 8, 16, 32, इस तरीके से तकसीम होते हैं। ये फिशन का प्रोसेस है, ये नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डिवाइड हो, नो। तो ये जो सेल की तादाद में इजाफा होना है वो बैक्टीरिया के अंदर बेनिफिशियन के जरिए होता है। बेनिफिशियन क्या है? वो जो एक सेल पहले वाला है जिसे हम कहते हैं पेरेंटल सेल, पेरेंटल सेल एनलार्जेस, उसके साइज में पहले इजाफा हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। देन क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट, वो जो उसका डीएनए है, क्रोमोसोम है, वो डबल हो जाएगा, 1 से 2 डीएनए बन गए। एंड न्यूक्लियर मटेरियल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल, और फिर वो जो डीएनए है, क्रोमोसोम वगैरह है, वो पूरे सेल में एक जैसा बिखर जाएगा। यूं समझ लो कि जब उसका डीएनए डबल हो गया तो एक ही सेल में एक एंड पर एक डीएनए और दूसरे एंड के ऊपर दूसरा डीएनए पहुंच जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पिंचेस, पिंचेस अंदर को धंसना, यानी कि 2 एंड के ऊपर, 2 ऐसे एंड के ऊपर 2 सेल तो बने हुए हैं, एक डीएनए इधर है, एक इधर खड़ा हुआ है, सेल तो एक है। फिर दरमियान में सेल मेम्ब्रेन ऐसे पिंचेस होगी, अंदर को धंसेगी, धंसती जाएगी और फिर एक से उसके 2 सेल बन जाएंगे। ये क्या चीज है? बेनिफिशियन है। द टाइम इंटरवल अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जनरेशन टाइम। ये अब शार्ट क्वेश्चन आएगा कि जनरेशन टाइम क्या होता है। 1 से 2 बनने तक जितना गैप है, जितना टाइम लगता है, वो जनरेशन टाइम कहलाता है। जैसे मैं कहता हूं बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डबल हो जाता है, 20 मिनट्स उसका जनरेशन टाइम है, वो 1 से 2 हो जाने हैं। अगर मैं अपना जिक्र करूं, जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन से लेकर जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, वो जो 28-29 साल का गैप है, वो जनरेशन टाइम है। तो बैक्टीरिया के अंदर जनरेशन टाइम 20 मिनट्स है। देन नेक्स्ट आपसे कहता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ फेजेस इन बैक्टीरिया। शॉर्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहां से निकालता है वो, यानी कि अगर बैक्टीरिया ने ग्रो करना हो तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, मराहिल हैं, उनमें से गुजर कर वो अपने आप को बढ़ाता है। एक होता है लैग फेज, LAG, लैग फेज ऑफ द नो ग्रोथ। इस फेज में ग्रोथ कोई नहीं होनी, जस्ट प्रिपेयर फॉर द डिवीजन। वो बैक्टीरिया अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा है। ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ की तैयारियां हो रही हैं। जैसे अगर हमने किसी फंक्शन में जाना हो, कोई शादी में जाना हो, तो महीना पहले उसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं जी। कपड़े ले रहे हैं, शूज ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बाजार जा रहे हैं। अभी टाइम तो आया नहीं है, लेकिन हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी। दूसरा लॉग फेज, लॉगरिथम से है। बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट। बैक्टीरिया जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा इस फेज में। एक्सपोनेंशियल रेट क्या होता है? 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, यानी कि 2 से 4, 8, 16, 32, इस तरीके से जल्दी जल्दी वो
डिवाइड हो रहा होता है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल रेट। ये उसका लॉग फेज है। पहला था लैग, दूसरा उसका लॉग फेज। अब बच्चे जो है लैग और लॉग फेज में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसको यूं याद करना, पहला एल ए से है, दूसरा एल ओ से है, ए वाली चीज पहले आएगी, तो एल ए ये पहले आ जाएगा। ये नो ग्रोथ फेज है, इसमें डिवीजन नहीं हो रही लेकिन अपने आप को तैयार करे। दूसरा मतलब लॉन्ग फेज जो उसमें जल्दी जल्दी डिवाइड करेगा, आपको एक्सपोनेंशियल रेट पे डिवाइड करेगा। स्टेशनरी फेज, व्हेन द डेथ रेट बिकम्स इक्वल टू द बर्थ रेट, ये रुका हुआ फेज है, उसकी आबादी में इजाफा नहीं हो रहा, जितने पैदा हो रहे हैं उतने मरते जा रहे हैं, आबादी में इजाफा तो ना हुआ। जैसे मैं कहता हूं हमारी क्लास है, हमारी क्लास में फॉर एग्जांपल अगर 4 बच्चे नए आ जाएं और 4 बच्चे क्लास छोड़ जाएं, तादाद तो वहीं खड़ी होगी। वो स्टेशनरी फेज होता है, वो रुका हुआ फेज है। लास्ट है डेथ और डिक्लाइन फेज, व्हेन डेथ रेट इज मोर देन द बर्थ रेट, जब मरते ज्यादा हैं और पैदा कम होते हैं, बाद में तो कम ही आएगी, वो डेथ फेज है या डिक्लाइन फेज होता है। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के 4 फेजेस, लैग, लॉग लॉगरिथम से, स्टेशनरी और डेथ और डिक्लाइन फेज। और इसी के अंदर एक टॉपिक खड़ा हुआ है कि कंजुगेशन क्या होते हैं। कंजुगेशन, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम इनटू अनदर थ्रू कंजुगेटिंग ट्यूब और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम इनटू अनदर, एक बैक्टीरिया का कुछ जो जेनेटिक मटेरियल है जब दूसरे में शिफ्ट हो रहा हो, कहां से शिफ्ट हो रहा हो, थ्रू कंजुगेटिंग ट्यूब और साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, इज कॉल्ड कंजुगेशन। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 2 बैक्टीरिया ऐसे नजदीक आएंगे दूसरे के और फिर जाकर उनके पिलाए खड़े होते हैं, पिलाए के जरिए जाकर एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाना है। वो पिलाए का जो कनेक्शन बना है इसे कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ब्रिज या फिर कंजुगेटिंग ट्यूब। इसके जरिए एक का जेनेटिक मटेरियल वो दूसरे में शिफ्ट हो जाएगा। अब जो देने वाला बैक्टीरिया है उसे कहते हैं डोनर, और जो लेने वाला होगा उसे कहते हैं रेसिपिएंट। तो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम इनटू अनदर इज कॉल्ड कंजुगेशन, और ये काम कंजुगेटिंग ट्यूब के जरिए जाकर होगा। बैक्टीरिया अटैच थ्रू सेक्स पिलाए, वो पिलाए जो उसके उभार होते हैं रेशे से होते हैं, और कुछ होता है सेक्स पिलाए। कंजुगेशन में सेक्स पिलाए इस्तेमाल होते हैं। वी डेवलप इनटू कंजुगेटिंग ट्यूब, वो मिलते हैं दोनों के पिलाए, तो मिलने से जैसे मैंने दिखाया आपको कंजुगेटिंग ट्यूब बनती है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है, फिर एक का मटेरियल दूसरे के अंदर वो जाकर शिफ्ट हो जाता है।